So welcome back class 9th students in our chemistry class, and today also we are going for the numerical part, solving the numerical part which we have given you. Now solving numerical, dear students, is very important part, because when you will develop the habit of solving it through concepts, by applying concepts, you will gain confidence and you will feel interest in the subject, because we have so many theory going on, and I'm taking my time also. I am trying to solve to each and every numericals, so each and every student develops a habit of solving the numericals, develop a habit not to fear from the numerical part, that is more important. And in the next chapter also we have water, and there we also have so many theory, and most of the part you have learned also. Only I will the main important thing is solubility curve, and the numerical problems on solubility. That is very important. We will deal with it today also. I am going to solve some of the numericals which I have given you from the exercise, and if you remember some of the questions I have given you in the very beginning. So let us start one by one. Today I will try to solve many numericals, the important one, which are good ones. So let's start. Now first numerical I have written, which I have given you, and it's from a book only. Oxidation of lead to sulfide, we have to balance the equations by partial equation method. So one equation we have balanced, and I hope that you have understood it. So again my approach will be like a student. How I will solve it? I will solve it like feeling as I am a student, step by step. So let's see. First step, ozone first decomposes to give molecular oxygen, nascent oxygen. First reaction. ओजोन क्या होता है पता होना चाहिए. तो फर्स्ट रिएक्शन वी विल राइट ओजोन O3 decomposes to give molecular oxygen प्लस nascent oxygen. तो nascent oxygen ये हो गया पहला रिएक्शन. अब तो हमने कहा था कि जब भी कोई पार्शियल इक्वेशन में इंटरमीडिएट स्टेप हम लिखेंगे, तो वी नीड टू चेक इट वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड वी विल बैलेंस इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो कॉमन हो के कैंसिल हो सकते हैं. कैंसिल कब होंगे? व्हेन दे विल बी कैंसिल, व्हेन वन विल बी इन द रिएक्टेंट साइड, अदर विल बी इन द प्रोडक्ट साइड ऑन summation. So that is the another concept. So let's check. 3 oxygen atom, 2 plus, it is balanced, no problem. So immediately we jump to the second equation. Nascent oxygen then oxidizes lead to sulfide. तो lead to sulfide क्या होता है? lead 2 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे Pb की जो वैलेंसी ली है वो 2 ली है +2, और सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है. तो फॉर्मूला हम बनाएंगे, जो ये ध्यान रखते हुए बनाएंगे कि ये Pbs हुआ, लेड टू सल्फाइड. 2 कैंसिल हो गया, Sf2 हो गया. ये कंपाउंड लिखना जानते ही होंगे, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड. तो ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड. कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ये बनाओ, ध्यान से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे. नेसेंट ऑक्सीजन देन ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड. तो लेड सल्फाइड Pbs था, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है टू गिव टू लेड सल्फेट. अगेन डियर स्टूडेंट्स, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, और यहाँ पे Pb2 है +2. एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? PbSO4 2 कैंसिल हो गया, तो ये लेड टू सल्फेट हो गया यहाँ. नाउ द सेकेंड टारगेट इज दैट यू हैव टू बैलेंस इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. तो चेक करते हैं. लेड पहले मेटल, लेड 1 है, नो प्रॉब्लम. सल्फर 1 है. Oxygen, here we have 4 oxygen, here we have 1. तो what will we do? We will balance it. तो सीधा 4 लगा दिया. अब जब भी मैंने बैलेंसिंग का बताया आपको, तो we have to recheck it. तो again we will check it. Pb lead 1 S1 4 oxygen, it is balanced. Now what we will do? We will do the summation. अब जैसे समेशन करेंगे तो वी हैव टू थिंक, इज there can be, which can be cancelled out,
तो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट साइड में, इधर प्रोडक्ट साइड में, ये तो कैंसिल हो सकता है इमीडिएटली, बट इट इज 4. सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. और यहाँ पे O है तो 4 जब यहाँ पे रहता तो कैंसिल होता. तो व्हाट विल यू डू, पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट विल बिकम 4O, 4O2, 4O3. This is for our convenience to maximum we can cancel. Now on summing, I am writing the whole reaction 4O3, reactant पहले लिखें, PbS plus 4 nascent oxygen gives 4O2 plus 4 nascent oxygen, इधर प्रोडक्ट का दोनों रिएक्शन का, and plus PbSO4. Now what we can cancel, nascent oxygen can be cancelled. So let us write down the reaction PbS. अब इसको पहले लिख लेंगे, कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका यही है लिखने का, PbSO4 plus 4O2. अब ये हमने सब जो नेट रिएक्शन लिखी, तो लास्ट में our D2 is to again check it whether it is balanced or not. So let us check Pb1, S1, O बचा 4 से इधर 12 और इधर 4 to the 8 filter. This is balanced. So this is the balancing by partial equation method. I hope you have understood it. So you can balance any partial equation method. Now let us move to the second question. Now some questions I have given you, practice questions. There was a question XCl2. XCl2 is the chloride of a metal X. XCl2 is chloride of metal X. State the formula of sulfate and hydroxide. सल्फेट का फॉर्मूला पूछ रहा है, एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल X. तो क्या अप्रोच रहेगा, पूछ रहा है सल्फेट और हाइड्रोक्साइड. तो अप्रोच बड़ा सिंपल है डियर स्टूडेंट्स. XCl2 क्या है, क्लोराइड है. तो क्लोराइड में हमें पता है पहले से कि क्लोरीन की वैलेंसी फिक्स है, दैट इज -1, और क्लोरीन इज 1-. नाउ आखिर ये XCl2 कैसे आया होगा, तो क्लोरीन की जब -1 होगी तो इधर 1 आया, तो इसकी क्या होगी, X की वैलेंसी. दिस इंप्लाइज दैट कि X हैज ए वैलेंसी ऑफ +2. तो तभी तो एक्सचेंज होकर 2 रहा होगा. जैसे ऐसे देखो +2 और Cl 1-, ऐसे हम चेक कर लेते हैं कंफर्म. ये इधर गया होगा, इधर आएगा, तो X1 Cl2 तभी तो बना होगा. This is important. So X has valency +2 means X has this valency और X2+. अब क्या कह रहा है कि सल्फेट कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड. तो डियर स्टूडेंट्स हमें किसके बीच में बनाना है, इसका मतलब X+2 और सल्फेट, क्योंकि सल्फेट का हमें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, रेडिकल है. और दूसरा क्या है, X+2 हाइड्रोक्साइड का भी हमें पता होना चाहिए. तो अब तो इजी हो गया तुम्हारे लिए. तो क्या हो गया, X2SO4, ये 2 इधर आया, SO4 होल ट्वाइस, चाहे ऐसे करो और फिर डायरेक्ट XSO4, और चाहे पहले ही STF से कैंसिल कर दो तो XSO4. तो सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया. हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला XOH, ब्रैकेट में 2 OH को एक हाइड्रोटम बनाओ, तो OH का यहां पे आ गया 1, इसके एटम्स, और ये क्या हो गए 2, तो इसकी वैलेंसी तो XOH होल ट्वाइस. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड, इधर आया 2, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट. नाउ लेट्स डील विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, एक एलिमेंट है वो लिखा है कि दैट इज ट्राईवैलेंट.
राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ एक्स इन ऑक्सीजन। कह रहा है कि कंबशन ऑफ एक्स इन ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कराएंगे और उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। और एलिमेंट एक्स, तो डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट एक्स जो है वो ट्राइवेलेंट है, तो एलिमेंट एक्स जो ट्राइवेलेंट है, तो ट्राइवेलेंट हम क्यों +3 लिखेंगे? बिकॉज इट इज ट्राइवेलेंट, और हमें इसको रिएक्शन किससे करानी है? ऑक्सीजन से। तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। तो ये X + O2 विल गिव द ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। अब बीइंग इट ए नॉन मेटल, और हमें यहां पे किससे कराना है? वी विल रिएक्ट विद X, एंड विच X इज ट्राइवेलेंट। तो X ट्राइवेलेंट अगर है तो X क्या हो गया? X हो गया 3 + 3, और O क्या है? -2। तो व्हाट विल बी एक्सचेंज इट? तो X 2 will come here and O will come, O के नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो it will be X2O3, combustion of X in oxygen. Now this equation is to be balanced, so we have to balance it. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We have considered it as a metal, तभी तो हमने +3 लिखा है। It is as a metal. We have considered it as a metal because X is unknown. Now, if any confusion comes, sir, it can be a non-metal. So that is another thing. We can go for that also. But at your level, we will consider it as a metal because here X is unknown. So we can. This whole solution is also correct. So if any confusion comes, sir, it can be non-metal. So shed that confusion. X, now for balancing part, X is here 1, पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 2 कर देंगे। Now 2x, X बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 3 है, तो किसी भी सूरत में ऑक्सीजन ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं 2 3 करके। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही इसीलिए कहते हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड। 2 3 6, तो 2 3 6 यहाँ पे हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ पे इमीडिएटली क्या हुआ? 3 हम कर देंगे, इमीडिएटली बैलेंस हुआ कि नहीं? तो हमने ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लिया, क्योंकि मेटल हम पहले बैलेंस कर चुके हैं, तो हम ऑक्सीजन के स्टेप पे आएंगे। नाउ 2 3 6, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन बैलेंसिंग, व्हेन यू गो टू द डाउनवर्ड स्टेप्स, अगेन यू हैव टू कम एंड रीचेक वेदर द बैलेंसिंग इज बीइंग डिस्टर्ब्ड और नॉट। तो यहाँ पे एक्स की बैलेंसिंग देख रहे हैं कि ये 2 है, यहाँ पे 2 2 4 है, इट हैज बीन डिस्टर्ब। तो इमीडिएटली व्हाट विल डू, वी विल रीबैलेंस इट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 4x, वी विल डू 4x। तो 4x किया, तो अब चेक करते हैं 4x, 4 atoms of x, 2 to the 4, 4 atoms of x, 2 3 to the 6. So now this equation is completely balanced. So this is a balanced equation. Next question is formula of nitride. Formula of nitride दिया है कि formula of nitride of a metal, यहाँ पे देखो metal मेंशन कर दिया है, पिछले क्वेश्चन में metal नहीं मेंशन किया था। तो अगर हम उसको, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, अगर उसको हम नॉन मेटल ले लेंगे तो वो आपके कोर्स के बियॉन्ड के लेवल के बाहर चला जाएगा। इसलिए ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सर ने क्यों नहीं नॉन मेटल लिया है, वाई सर हैज नॉट टेकन नॉन मेटल अगेन, तो वो 10th के लेवल में चला जाएगा। वी हैव टू गो फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स, वहाँ पे नॉन मेटल मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सो दैट वाई you at your level you have to consider it metal and solve it, so there should be no confusion dear students. Now formula of nitride of a metal X is Xn. तो नाइट्राइड क्या होता है? N -3 होता है ना नाइट्राइड, सबको पता है। अब क्या है कि स्टेट द फॉर्मूला ऑफ इट सल्फेट, सल्फेट पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है?
हाइड्रोक्साइड और दूसरा पूछ रहा हाइड्रोक्साइड। तुम मेटल एक्स है, अब यहां से ये इंफॉर्मेशन दी है कि एक मेटल एक्स है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सएन, उसका समथिंग नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड। तो नाइट्राइड का हमें पता रहता है ना कि N-3 है, तो ये एक्सएन फॉर्मूला हम दिमाग लगाएंगे कि एक्सएन फॉर्मूला कैसे आया होगा। यहाँ पे -3 है तो ये 3 इधर क्या होगा, तो इसके पास भी तो 3 हुआ होगा, तभी तो 3 कैंसिल हो गए, ये एक्सएन बना होगा। तो दिस शोज दैट कि x हैज द वैलेंसी ऑफ +3, x हैज वैलेंसी ऑफ +3। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली, x हैज वैलेंसी ऑफ +3। व्हाई? बिकॉज द फॉर्मूला जो बन रहा है वो एक्सएन बन रहा है, और तभी 3 रहा, +3 रहेगा, तो +3 माइनस HCF इज, तो डिवाइड करते हैं फॉर्मूला लिखते वक्त, तो एक्सएन आया होगा। Therefore x has the valency of +3। तो now we got the valency of +3। तो सल्फेट अब लिखना आसान हो गया, तो x +3 और SO4 2 माइनस इधर ले आओ, तो x इधर नीचे आया 2, SO4 होल थ्राइस, ये हो गया आपका सल्फेट का फॉर्मूला। हाइड्रोक्साइड अगेन सेम मेटल x +3, और हाइड्रोक्साइड रेडिकल क्या होता है OH -1, एक्सचेंज करो, तो x 1 यहां पे आया और OH होल थ्राइस, मैं 1 वगैरह नहीं लिख रहा हूं टू सेव टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Now we are going to tackle this question, dear students. We have to find out the percentage loss of mass of hydrated copper to sulfate when it is completely dehydrated. तो परसेंटेज लॉस ऑफ मास, मास में क्या परसेंटेज लॉस हुआ जब वो हाइड्रेटेड था, मतलब कि जब उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स थे और जब उसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री में आ गया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। हाउ? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन 9th क्लास एंड यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू। तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे। तो बस क्या है कि पहले इनिशियल जो हमारा क्या था, ये था CuSO4 5:2, ये इनिशियल है, ध्यान से समझो बिल्कुल। और ये चेंज हो गया किसमें? फाइनल में, CuSO4 में। ये क्या है? फाइनल है। तो परसेंटेज लॉस ऑफ मास पूछ रहा है, तो परसेंटेज लॉस और किस पे पूछ रहा? मास में, इसका मास, इसका। और हमारे लिए केमिस्ट्री में व्हाट इज मास? दैट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द मास। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज जो लॉस हुआ, क्या दी रहा है पहले से, तो दैट इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू FV माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यही फॉर्मूला लगाना है। तो फाइनल वैल्यू क्या है? मास ऑफ दिस, डिहाइड्रेट जब हो गया, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थे, माइनस इनिशियल वैल्यू ये अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू। तो आवर टास्क इज टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम किसका निकालेंगे? CuSO4 5H2O का। तो सिंपल है ना? तो ये जनरल कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूं। CuSO4, तो Cu का 64 प्लस 32, अब ये सब तो निकालना सीख ही गए होगे, प्लस 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू H2O, तो 2 इंटू 1 प्लस 16, तो कितना हो गया? 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 इंटू 18, ये कितना हो गया? 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 5 19,
ये अब कैलकुलेट करते रहना, ये हो गया A तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू A, इसका मास हो गया। अब जो मास ऑफ CuSO4, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए तो मास ऑफ CuSO4 ले लेंगे, 64 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये कैलकुलेट करके क्या हो गया, B हो गया। कुछ आएगा ही तो तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज, तो क्या हो गया, फाइनल वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट्स, B, कुछ आएगा माइनस A अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना है, A into 100, you will get the answer. So you will solve it, you will get the answer. So this is the percentage loss. Now some students, those who practice more and more, they can get one more method. Sir, why we are using so many calculations, why can't we simply go directly and solve that? Yes, you can solve it, but it's for those who have practiced it so much that they can get, because what is the loss actually? What is the loss actually? The loss actually is this 5H2O. एक्चुअल में लॉस किसका हो रहा है, 5H2O का। तो जो यहाँ पे हम इतना लंबा लंबा प्लस करके माइनस कर रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या आएगा, 5H2O। तो 5H2O मतलब कि 5 into 18 अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये भी मिल गया डायरेक्टली। इट विल सेव योर टाइम। तो अगर आपका कंपटीशन वगैरह में पूछ रहा है, टाइम आपको बचाना है, तो यू कैन गो बाय दिस मेथड। ज्यादा मार्क्स का है, पूरे स्टेप वाइज करना है, यू कैन गो बाय दिस मेथड। तो यहां भी ये समझ में आ रहा ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो यही तो मेन लॉस है 5H2O का अपॉन A जो इनिशियल वैल्यू था इंटू 100। So dear students, now I hope that you must have got a way how to tackle the numericals, and my advice is to all of you that don't afraid of numerical problems, be it chemistry, be it physics, be it mathematics. If you are a science student, apply the basics, try to grasp the basics and then apply it. Yes, one important thing, dear students, I would like to tell you that you must be knowing also, if percentage increase or percentage decrease, if it comes with negative sign, so you don't have to be worried about it. If it comes negative, that means the percentage, that is the decrease. If it comes in positive sign, that is the percentage increase. So if the answer comes in negative, so no, not to worry, but that is a sign of percentage increase or percentage decrease. So thank you very much. That's all for today.